Good morning everyone. Myself Suman Meena, PGT Commerce, Kendriya Vidyalaya number 3, Jaipur. I'm here again to teach you about the activity ratios and profitability ratios. Let's know what are the activity ratios. Activity ratios are the ratios which measures the efficiency of asset management and measure the effectiveness with which an enterprise uses its resources at its disposal. These shows rotation of concerned items within an accounting period. Activity ratios refers to the type of the financial ratios which are used by the company in order to determine the efficiency with which the company is able to use its different operating assets that are present in its balance sheet and convert the same into the sales or the cash. There are various types of activity or turnover ratios such as inventory turnover ratio, debtors turnover ratio, average collection period of debtors, fixed asset turnover ratio, total asset turnover ratio and creditors turnover ratio. Let's know first of all we will know about the inventory turnover ratio. What is inventory turnover ratio? This ratio focuses on the relationship between the cost of goods sold and average stock. So it is known as inventory turnover ratio or velocity ratio. The formula of inventory turnover ratio is cost of goods sold upon average inventory. Cost of goods sold, also known as cost of revenue from operations. How we will find out the cost of revenue from operations or cost of goods sold? We will find out it by adding opening stock with the net purchases with the direct expenses and by deducting closing stock. There is another way to find out the cost of revenue from operation is equals to sales or revenue from operations minus gross profit. By this way we will find out the cost of revenue from operation. In the formula we can see average inventory is also given. So how can we find out it? Average inventory will find out by the adding opening stock plus closing stock upon 2. By this way we will find out the average inventory. In the picture you can see inventory in the beginning, inventory at the end, net purchases, wages, revenue from operations and carriage inward is given. Students, इस इन्फॉर्मेशन से आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना चाहिए, बिकॉज हमें फॉर्मूले में जो दे रखा है हमें वही फाइंड आउट करना है. अननेसेसरी एक्सरसाइज हमें नहीं करनी होती है. सो फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे फाइंड आउट करना है हम पहले ही जान चुके हैं, बट इस क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है हम उसके थ्रू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फाइंड आउट करेंगे. तो क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, नेट परचेजेस गिवन है, वेजेस गिवन है एंड कैरेज इनवर्ड गिवन है. इन सब को ऐड करने के बाद इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री हम माइनस कर देंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा. अब फार्मूला में हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री भी है. एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला आपको पता ही है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2. 2 से डिवाइड करने के बाद में जो आपको मिलेगा वो एवरेज इन्वेंट्री होगा. तो इस क्वेश्चन में 20,000 आपको एवरेज इन्वेंट्री मिली है और इसको पूरे फॉर्मूला में पुट ऑन करने से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देख सकते हैं आपने 60,000 फाइंड आउट किया है और उसको हम डिवाइड कर देंगे एवरेज इन्वेंट्री से जो कि आपने 20,000 फाइंड आउट किया है. तो ये रेशियो टाइम्स में एक्सप्रेस होते हैं, ये आपको पता है, और 3 टाइम्स आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट आपने किया है. दूसरा रेशियो है डेटर्स टर्नओवर रेशियो. उसको हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जाना जाता है, उसको जानते हैं. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और डेटर्स टर्नओवर रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट सेल्स. ध्यान देंगे, क्रेडिट सेल्स नहीं, नेट क्रेडिट सेल्स. नेट क्रेडिट सेल्स में क्या होता है, टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस किया हुआ जो अमाउंट बचता है वो नेट क्रेडिट सेल्स होता है. सो इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज डेटर्स. एवरेज डेटर्स और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स भी हम कह सकते हैं. एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन 2.
बच्चों, जब भी एवरेज वर्ड दिया हुआ होता है तो उसे हमेशा हम 2 से डिवाइड करके फाइंड आउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला क्या है डेटर्स टर्नओवर रेशियो का। डेटर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब नेट क्रेडिट सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को सेल्स भी कहा जाता है। सो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एक और एग्जांपल हम देखें तो आपको दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ट्रेड रिसीवेबल्स बिगिनिंग और ट्रेड रिसीवेबल्स क्लोजिंग। तो फार्मूला सबसे पहले मैंने आपको बताया कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला आपको पता है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इस क्वेश्चन में हम फाइंड आउट करेंगे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिडक्ट करके, और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपके गिवन है 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4 लाख गिवन है, तो 4 लाख का 20% हम निकालते हैं तो 80,000 आ जाता है, और इस तरह से हमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मिल जाता है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए हमने आपको पहले ही बताया है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन 2। इससे आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर फार्मूला में अमाउंट पुट ऑन करने के बाद में आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड आउट करने के लिए आपको ऑलवेज 365 जो ईयर है आपका, और लीप ईयर है तो 366 अपॉन जो आपका रेशियो आया है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, उससे हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज कलेक्शन पीरियड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा रेशियो है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, इसे आप ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं। दिस शोज रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट परचेजेस और एवरेज क्रेडिटर्स। ओके, नेट क्रेडिट परचेजेस इक्वल्स टू टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड और कैश परचेजेस विच एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन। The formula of creditors turnover ratio is equals to cost of goods sold upon average payables। फिर एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि क्रेडिट परचेजेस गिवन है आपको, क्रेडिटर्स गिवन है, बिल्स पेबल गिवन है, क्रेडिटर्स बिगिनिंग और एंडिंग गिवन है, और बिल्स पेबल बिगिनिंग और एंडिंग गिवन है। फिर आप फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपने देखा, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज ट्रेड पेबल्स कैलकुलेट करने के लिए वी विल ऐड क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग, बिल्स पेबल्स इन द बिगिनिंग, क्रेडिटर्स एट द एंड एंड बिल्स पेबल्स एट द एंड, एंड विल डिवाइड बाय 2। तो आपको एवरेज ट्रेड पेबल्स मिल जाएगा। नेट क्रेडिट परचेजेस आपको क्वेश्चन में गिवन है, और फॉर्मूला जब आप पुट ऑन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स आया है। एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया है कि अगर लीप ईयर है तो हम 366 रखेंगे, और लीप ईयर नहीं है तो 365 डेज़ इन अ ईयर हम लेते हैं, और उसको जो भी रेशियो आपका आता है उससे आप डिवाइड करते हैं तो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड मीन्स दिस शोज द एवरेज नंबर ऑफ डेज टेकन बाय द फर्म टू पे द क्रेडिटर्स। कितने एवरेज कितना टाइम फर्म क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने में लेगी, ये टाइम पीरियड बताता है। अनदर रेशियो इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। It establishes the relationship between net working capital and revenue from operations or net sales. Formula is net sales upon average working capital. Working capital means current assets minus current liabilities. So net working capital is equals to current assets, और current assets में fictitious assets include नहीं होनी चाहिए, और उसमें से हम current liabilities माइनस कर देंगे तो net working capital आपकी आ जाएगी। नेट सेल्स गिवन है क्वेश्चन में, आपको देखिए टर्नओवर गिवन है 11,50,000, करंट असेट्स गिवन है 750,000 एंड करंट लायबिलिटी इज 3,50,000। फार्मूला आप देख रहे हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। इस तरह से हम अमाउंट्स जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो फाइंड आउट करके हम रेशियो निकाल सकते हैं।
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं 2.88 टाइम्स है। इसका मतलब क्या है कि हर यूनिट के सेल होने पर आपकी वर्किंग कैपिटल यूटिलाइज कितनी हो रही है, ये रेशियो ये शो करता है। देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होते हैं? दीज रेशियोज आर यूज्ड टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं ये रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज? फर्म की जो अर्निंग कैपेसिटी है, प्रॉफिट अर्न करने की जो एबिलिटी है वो कितनी है, वो जानने के लिए आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। These ratios are very important as profitability is the measurement of the overall performance and efficiency of the management. Profitability ratios are used to evaluate the company's ability to generate income as compared to its expenses and other costs associated with the generation of income during a particular period. These ratios represents the final result of the company and these ratios are very important. Okay, all profitability ratios are shown in percentage form. Don't forget, profitability ratios are always shown in percentage form. There are various types of profitability ratios such as profit margin ratios. There are two types of profitability ratios. Profit margin ratios are rate of return ratios. Profit margin ratios have four types: gross profit margin, operating profit margin, net profit margin or operating ratio. As well as rate of return ratios includes return on capital employed ratio. Let's take first ratio is gross profit ratios. आपको पहले ही बताया है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को शो करता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या शो करता है, किसकी रिलेशनशिप को शो करता है? बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स। मीन्स जो टोटल सेल्स आपको हुई है, नेट सेल्स जो हुई है, उस पर आपने कितना प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना अर्न किया है। टू फाइंड आउट दिस रेशियो द फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन sales multiple by 100 because these ratios are expressed in percentage form. That is why we will multiply by 100. This ratio indicates the margin of gross profit available on revenue from operations, or revenue from operations means sales. Generally a higher ratio indicates better profitability. Let's take one example. Revenue from operation, cash and credit, purchases, cash and credit, carriage inward, salaries, decrease in inventory, return outward, wages are given in the question. Let's take solution. Revenue from operations we will find out by adding cash revenue from operations with the credit revenue from operations. Net purchases is equals to cash purchases plus credit purchases minus return outward, means purchase return. Cost of revenue from operations means cost of revenue from operations means purchases plus opening inventory minus closing inventory plus operating direct expenses. Okay, and by this way we will find out the gross profit ratio. Students, in this question we can say or we can see the gross profit ratio is 10% of sales. Means if sales is 1 lakh, then gross profit is 10,000, 10% of 1 lakh. Now another type of ratio is operating ratio. This ratio shows the relationship between operating cost and net sales or net revenue from operations. Operating cost is equals to cost of revenue from operations plus operating expenses plus operating expenses includes office and administrative expenses and selling and distribution expenses plus depreciation plus bad debts plus discount on debtors plus interest on short term loans. So this is the details. If in the question any information from these is not given, please ignore it.
Let's take one example. Cost of revenue from operation is 1,50,000. Operating expenses are 60,000. Revenue from operation is 2,50,000. Now calculate the operating ratio. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले फार्मूला रखेंगे. फार्मूला आपको पता है, कोस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीपल बाई 100. 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज फॉर्म में रेशियो चाहिए. तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1,50,000 गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 60,000. दोनों को प्लस करने के बाद हम डिवाइड करेंगे किससे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस से, जो कि 2,50,000 गिवन है, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 84% आपका आया है. क्या आया है? ऑपरेटिंग रेशियो. तीसरा रेशियो है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट सेल्स और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीपल बाय 100. ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम माइनस कर देंगे. तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं. आपको सेल्स और सेल्स रिटर्न गिवन है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है. इसमें आप फार्मूला में रखने के बाद देखते हैं तो आपको मिल जाता है 20%. क्या मिल जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ नेट सेल्स द कंपनी अर्न्स 20% एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. एक यूनिट सेल करने पर कंपनी को 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है. ये रेशियो ये शो करता है. अनदर रेशियो इज नेट प्रॉफिट रेशियो. दिस शोज रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट्स एंड नेट सेल्स. मीन्स नेट सेल्स होने पर आपको नेट प्रॉफिट कितना होता है. फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स. नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम. एक और तरीका है नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने का. ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस कर देंगे. एक और तरीके से भी हम निकाल सकते हैं. ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आप माइनस करने से नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं. इसका भी एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल हम ले लें तो आपको क्वेश्चन में गिवन है सेल्स रिटर्न, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट. इसमें आप देखें कि जब सबसे पहले आपको फार्मूला ही पुट ऑन करना होता है. जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीपल बाय 100. नेट सेल्स कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, जो कि क्वेश्चन में गिवन है. और नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग इनकम माइनस डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट. ये माइनस कर देंगे, ठीक है. और ये माइनस करने के बाद में आप जब फार्मूला में इस अमाउंट को रखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि नेट प्रॉफिट रेशियो आपका कितना है? 50%. इसका मतलब क्या है कि जब भी फर्म एक यूनिट सेल करती है तो उसको 50% नेट प्रॉफिट मिलता है. लास्ट रेशियो ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें आपको रिटर्न कितना मिलता है, कितना परसेंट मिलता है. So this ratio shows the relationship between net profit before interest and tax and dividend and capital employed of the business. The formula of this ratio is return on investment ratio is equals to net profit upon cost of investment multiplied by 100. देखिए बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड आप कई तरीके से निकाल सकते हैं. यहाँ पर 2 तरीके से मैं आपको बताती हूँ. एक तो लाइबिलिटी अप्रोच. अगर लाइबिलिटी साइड की आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है तो यू कैन फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द लाइबिलिटी अप्रोच. और असेट साइड की इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप उससे भी कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं हम लाइबिलिटी अप्रोच से कैसे निकालेंगे. कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी अप्रोच से निकालने के लिए आप सबसे पहले शेयर कैपिटल में रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस करेंगे और उसमें से नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे. तो इस तरह से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट हो जाएगा. एक और तरीका है लाइबिलिटी अप्रोच से ही कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने का. शेयर होल्डर्स फंड के साथ आप नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ को प्लस कर देंगे तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा.
दूसरी अप्रोच की अगर हम बात करें तो असेट अप्रोच है। असेट अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला है फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों असेट्स इंक्लूड होगी, तो फिक्स्ड असेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड असेट्स में क्या प्लस करेंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस करंट असेट्स, ये सब प्लस करने के बाद में करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। अगर आपको इन इन्फॉर्मेशन में से कुछ नहीं दे रखा है तो फिर दूसरा कुछ दे रखा होगा, तो दूसरी अप्रोच देख लेते हैं हम। असेट अप्रोच से ही दूसरा तरीका देख लें। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको फिक्स्ड असेट वही टेंजिबल और इंटेंजिबल इंक्लूड होगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो भी प्लस कर लेंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी प्लस कर लेंगे। अब ऊपर आपने करंट लाइबिलिटीज़ माइनस किया था, यहाँ पर आप वर्किंग कैपिटल प्लस कर लेंगे। तो बच्चों देखिए, ऊपर आपने करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ किया था, ठीक है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, उसका मतलब भी वर्किंग कैपिटल ही होता है। और डायरेक्टली अगर हम नीचे वर्किंग कैपिटल ही प्लस कर देते हैं तो उसका भी मीनिंग वही होता है। एक और तरीका है, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल और टोटल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, यानी आप असेट साइड की सारे जो असेट्स हैं उनको टोटल कर दें और उसमें से करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर दें तो यू विल फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। शेयर कैपिटल आपको दे रखा है 80,000, लोन दे रखी है बैंक की 15% की रेट पर, जनरल रिजर्व गिवन है 40,000, टैक्स पे किया है आपने ड्यूरिंग द ईयर 20,000 एंड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है 40,000। अब बच्चों आप देखें कि आपके फार्मूला में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है और आपके क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हमें बिफोर की कंडीशन में जाने के लिए टैक्स और इंटरेस्ट प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर जो है उसमें हम प्लस कर देते हैं तो बिफोर हो जाएगा। तो टैक्स कितना दे रखा था हमें, 20,000 क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। और इंटरेस्ट 15% लोन पे, लोन कितना था 50,000 और 50,000 का 15% कितना होता है 7,500। तो वो इंटरेस्ट और टैक्स प्लस करने के बाद में हमें कौन सा प्रॉफिट मिल जाएगा, आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कौन सी अप्रोच से डायरेक्टली गिवन है, या तो शेयर कैपिटल, अब तो आप लाइबिलिटी अप्रोच से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए शेयर कैपिटल 80,000 गिवन है आपको, लोन टर्म लोन्स गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, तो आप इन सब को ऐड करने के बाद में आप फाइंड आउट कर सकते हैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। और इस फार्मूला से आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इस पीपीटी को बहुत अच्छे से रीड भी करेंगे और समझेंगे भी। आपका अपना इम्पॉर्टेंट टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।